Hello students. Hi, this is Yasin sir from Yasin Sir's Academy. Students, I am here today to help you out to take an important and wise decision, which we called as that would be a step which you are taking at the first time, that is a step towards success. So any right decision taken today will help you to make a strong future ahead. So students, I am here to take a wise and important decision, that is what after standard 10. 10 स्टैंड के बाद क्या करना है हमें. Okay, now you will ask me कि in today's world आजकल तो बहुत सारी different websites है, internet facilities है, you have YouTube, you have Google, and you have many such things which will help you to take the decision on yourself independently. But still now the traditional method is still followed कि एक कोई ऐसा पर्सन है जो हमें बिठाकर आराम से अपने पेरेंट्स की तरह समझा दे, जो हमारा एकेडमिक पेरेंट हो. ओके, एंड वी आर हियर टुडे टू हेल्प यू आउट कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि 10th के बाद क्या करना है. बहुत सारी चीज़ उनके दिमाग में चल रही है. द मेजर क्वेश्चन विच कम्स टू अस फ्रॉम द स्टूडेंट इज कि सर मुझे क्या करना चाहिए 10th के बाद. शुड आई ऑप्ट फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. ये मेजर कंफ्यूजन है, क्या करना चाहिए. सो योर आई एम हेल्पिंग यू आउट विद अ स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए. यू कैन टेक डिसीजन. ओके, आप सोच सकते व्हाट आर द स्किल्स इन यू, विच आर द सब्जेक्ट्स which are of your liking, and according to that you can decide कि what you want to choose, arts, commerce or science, because the decision taking right now will take your future ahead. So students, here if you can see on the board, I have classified the streams into three parts: arts, commerce and science. Now if you see properly, arts में मैंने लिखा हुआ generally all theory subjects comes here. मतलब if you are very good at theory, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स कैसे टाइप की थ्योरी सर. तो थ्योरी विच इज मोर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस. ओके, पॉलिटिक्स के बारे में, ओके, करंट अफेयर्स के बारे में, ओके, हिस्ट्री, आपने स्कूल में ये सब सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए. लॉजिस्टिक कर एक होता है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह लेकर, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, एंड द लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फ्रेंच. ओके, दैट इज द लैंग्वेज गुजराती. ओके, These are the basic subjects in arts. Arts में ये subjects generally होते हैं students. Okay? दूसरा तरफ नजर घुमाया जाए students, तो commerce में there are more practical and theory related subjects. Example, you have accounts, bookkeeping कर एक subject होता है, economics again, maths और secretarial practice, short form में उसे SP कहा जाता है, OC that is organization of commerce, and the languages English, Hindi, Marathi, Gujarati, French again. So these are the basic subjects which are there in commerce. Now if you talk about science, so science में practical and theory again, you have biology, maths, physics, chemistry, languages. These are the subjects generally which we have in science students. तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स की बात हुई. तो दिस सब्जेक्ट्स एटलीस्ट हेल्प यू टू नो कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, विच आर द सब्जेक्ट्स विच विल बी लर्निंग दैट इन दैट स्ट्रीम. तो सम सब्जेक्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर स्कूल सेक्शन, आपने 9th 10th में ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, तो आपको पता है. तो योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एटलीस्ट विल गिव यू मोर देन 50% ऑफ द ऑप्शन कि भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि ये चीज़. I am good at physics, chemistry, biology. Yeah, I am good at calculation of numbers. I like the subjects which are relating to more of commerce. Okay. Yeah, I am very good at history, geography and political science, civics. Okay. तो वो subjects की मेरी liking है. Because your liking always matters students. Okay. आपकी liking क्या है, आपको कौन से subjects में दिलचस्पी है, तो वही चीज अगर आप पढ़ोगे तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, एंड डेफिनेटली यू विल बी अ मेरिटोक्रेटिक स्टूडेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड एट दिस मोमेंट, बिकॉज दिस इज योर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस.
सो यू हैव टू वेरी केयरफुली डिसाइड कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में आने वाले 30 to 40 ईयर्स में। तो उसके लिए आप पहला स्टेप क्या लें। तो दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर आर्ट्स, वेदर यू वांट टू गो फॉर कॉमर्स और वेदर यू वांट टू गो फॉर साइंस। तो दिस आर द सब्जेक्ट्स व्हिच विल एटलीस्ट हेल्प यू टू डिसाइड। सेकंड थिंग जो दिमाग में आती है आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ऐसा है कि भाई मैं जल्दी से सर पैसे कमाने लग जाओ, ओके आई वांट टू बिकम अ रिच, आई वांट टू परचेज दिस, आई वांट टू बाय दैट। So which are the different professions which you can get into after clearing this courses, okay? तो जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखे स्टूडेंट्स, वैसे यू कैन गेट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन इंटरनेट एंड एवरीथिंग। ये जो मेन जो इनके बोल सकते हैं हम लोग जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, ओके, या करियर्स है विच आई हैव रिटन हियर, ओके, द फ्यू एंड द इम्पोर्टेंट वन। जैसे कि जो अगर आप आर्ट्स में से कंप्लीट करते हो पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका मेजर स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, तो यू कैन गेट इनटू पॉलिटिक्स, okay, you can get into Lok Sabha, Rajya Sabha, member of parliament, okay, you can get into any other politics related things, okay, many institutions you can join, okay. Journalism, this is very important nowadays. We have seen this is the career which is growing very fast with a very fast speed. Journalism में आप जा सकते हो। तो these are some of the careers which you can decide after arts. Commerce में the key careers after taking commerce या completing the commerce course or specialization in commerce, you can go for chartered accountancy CA, you can go for a company secretary, okay, you can go for a tax consultant, you can go for practicing law, okay, आप ये कर सकते हो, और you can go for banking, insurance और advertising sector। तो ये sectors में आप काम कर सकते हो, okay। तो if this is your liking then commerce is your choice। Next, if you go for science students, साइंस में बेसिकली वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, यू कैन डू दैट, बट टू मेन एंड इम्पॉर्टेंट वन विच एवरीबडी ऑफ फॉर या गोइंग आफ्टर साइंस, जो पहला उनका चॉइस होता है दैट इज इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। दिस आर द टू मेन थिंग। द ओनली थिंग इज दिस इज लिटिल बिट कॉस्टलियर कोर्स, ओके। अगर आप देखोगे कंपेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स, अगर ये कोर्स में आप जाते हो तो थोड़ा फाइनेंसिंग आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बट डेफिनेटली रिटर्न्स भी फिर वैसे ही होते हैं, ओके। तो यू कैन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, योर नीड, यू कैन डिसाइड विच इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू, सो विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम टू चूज एट दिस मोमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, so this will really help you to know whether you are eligible for arts, commerce or science. I hope so this much part is very much clear to you students. We at YSA, at Yasin Sir's Academy, okay, we are more into school section and commerce section. I myself is a postgraduate and I am teaching from more than 15 years in commerce stream. So we are more into school section and commerce, so I can guide you more about commerce, okay. So general guidelines I have given you about arts and science, okay. If you are deciding commerce and if you want to make career in commerce, we are always there to help you. So we have more specialization in commerce, so I'll let you know about commerce. थोड़ा मैं आपको commerce के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप commerce के बारे में मुझे पूछेंगे स्टूडेंट्स, commerce में बेसिकली 11th और 12th स्टैंडर्ड जो आपकी FYJC, फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज एंड सेकेंड ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज होती है, ओके। तो वहाँ पर आपको 11th एंड 12th में जो सब्जेक्ट्स आएंगे, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, वो रहेंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मैथ्स एंड लैंग्वेजेस। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे स्टूडेंट्स कॉमर्स से रिलेटेड। सो अगर हम बात करें अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में 11th एंड 12th में जनरली स्टूडेंट्स you will be taught the things which are more related to proprietor and partnership form of business. What do you mean by proprietor? Single person doing a business. एक आदमी जो business करता है उसको बोलते हैं proprietorship business. और partnership means when two or more person comes together and do a business. Okay? So that is what we call as partnership form of business. तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे, इसे इनिशियल लेवल पर बुक कीपिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, हायर लेवल पर अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो इन दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यू विल बी लर्निंग इन 11th एंड 12th मोर विच आर रिलेटेड टू प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, एंड लेटर ऑन आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सीखना शुरू करोगे। तो
ये आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 11th एंड 12th में बेसिकली द चैप्टर विल बी रिलेटिंग टू, जैसे मैंने इधर भी लिखा हो, it will be relating to micro and macro economics, micro and macro economics, okay, जैसे एग्जांपल पॉवर्टी, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, ओके, डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे टाइप के टॉपिक्स के बारे में आप सीखोगे जिसमें स्कूल में आपने जस्ट एट अ ग्लांस के वे में देखा था। नाउ यू विल बी टॉट इन मच डिटेल। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में बेसिकली यू विल बी लर्निंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो व्हाट आर द स्कोप, फीचर्स, एडवांटेजेस, ओके, ड्रॉबैक्स, दैट यू विल बी लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ऐसी सब चीजें यू विल बी लर्निंग इन ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स कर एक सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट कम्स एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ओके, इसमें बेसिकली यू विल बी लर्निंग द फंक्शंस एंड द रोल्स ऑफ ऑडिटर एंड अ सेक्रेटरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर? ऑडिटर इज अ पर्सन हु कम्स एंड चेक द अकाउंटिंग वर्क, ओके, जो अकाउंट्स के काम को वेरीफाई करते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटर। और सेक्रेटरी मतलब यहाँ पर वो पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है जो बॉस के पीछे बैठकर वो नोट डाउन करती है कुछ, ओके, यहाँ पर आई मीन कंपनी सेक्रेटरी हु नो द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। आपने देखा होगा जो कोर्सेज के बारे में मैंने बात किया, जो CS कर एक कोर्स था कंपनी सेक्रेटरी, वेर यू कम टू नो द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म करना है, कंपनी कैसे डिसॉल्व करना है, कंपनी के कुछ भी लीगल मैटर्स है उसको कैसे हैंडल करना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कंपनीज एक्ट में क्या क्या बोला हुआ है, तो उसके बारे में जो सबसे स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। और हर एक कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कंपनी सेक्रेटरी की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप उस चीज के बारे में सीखोगे। आई कैन शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ मोर थियोरी ऑफ अकाउंट्स यू विल बी लर्निंग इन एसपी, ओके। देन यू हैव मैथ्स। मैथ्स तो आपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, बट ये थोड़ा हाई लेवल का मैथ्स रहेगा। और स्टूडेंट्स, माय न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन आता है 11th और 12th में, ये आइदर यू कैन गो फॉर एसपी और यू कैन गो फॉर मैथ्स। तो स्टूडेंट्स हु आर गुड एट नंबर्स ऑप्ट फॉर मैथ्स, एंड स्टूडेंट जिनको मैथ्स से डर लगता है तो उनके पास ऑप्शन है वो एसपी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपका कौन सा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, एंड यू कैन गो फॉर इट। इफ यू आर गुड एट थ्योरी, गो फॉर एसपी। इफ यू आर गुड एट प्रैक्टिकल नंबर्स, गो फॉर मैथ्स। मैथ्स में यू विल बी लर्निंग द टॉपिक्स रिलेटिंग टू लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, ऐसे जो चैप्टर्स है यू विल बी लर्निंग इन मच डिटेल। एंड माय न्यू स्टूडेंट्स, दिस आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8, 9, 10, 11, 12 का जो मैथ्स है, हर एक एग्जाम्स, आगे प्रोफेशनल एग्जाम्स हम करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, जहाँ पर मैथ्स में यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये स्टैंडर्ड्स में अच्छी तरीके से मैथ्स कर दिया है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम पे प्रॉब्लम ना होगी, बिकॉज टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम यू शुड बी वेरी गुड एट योर इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। तो ये अगर आपने मैथ्स ऑप्ट कर दिया है तो डेफिनेटली आपको आगे प्रॉब्लम ना होगी। बट आगे आप ऐसा कुछ नहीं करने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर एसपी ऑल्सो। तो दिस आर द बेसिक्स सब्जेक्ट्स विच यू कैन डू इन कॉमर्स। Now students, as I told you, I am into commerce field from more than 15 years and my specialization is bookkeeping accountancy, okay. So commerce, which we generally called as it's a language of business, and language of business में the core subject of commerce is bookkeeping and accountancy, and that is my subject. Generally I teach that bookkeeping and accountancy, okay. तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको अभी ब्रीफिंग कर दूंगा। इनिशियली मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स बताई, कॉमर्स क्या है, और कॉमर्स का जो सबसे कोर सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट तो कॉमर्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब बाकी सब्जेक्ट तो 1 साल 2 साल रहेंगे, शायद वो चले जाए, बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स देन अकाउंट्स विल नॉट लेट यू, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपको, ओके, और आप इस सब्जेक्ट के साथ आगे अपनी लाइफ जीना चाहते हो, देन कॉमर्स इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। तो क्या है ये कॉमर्स में, ओके, कोर सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लोअर लेवल पे 11, 12 में हम उसे बुक कीपिंग बोलते हैं, हायर लेवल पे वी कॉल दिस सब्जेक्ट एज अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में बेसिकली क्या होता है, तो इन दिस सब्जेक्ट, ओके, मैं आपको पहले
सेकेंड पॉइंट से समझाता हूँ, फिर मैं फर्स्ट पॉइंट पर आता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, ओके, या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मोर अप्रोप्रिएटली इज अकाउंटेंसी। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने स्कूल में कुछ टर्म्स पढ़े हुए, H2O, बता सकते हैं मुझे H2O क्या है? वाटर। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, सर सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कैसे पता है? बिकॉज आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। बट स्टूडेंट्स, कभी हम ये टेक्निकल टर्म एक नॉर्मल शॉप में जाकर बोलेंगे मैन गिव मी वन H2SO4, तो वो समझ पाएगा क्या स्टूडेंट? जरा भी नहीं। उसको हम बोलेंगे भाई हमें वो एसिड की बॉटल दे, उसको वो समझ में आएगा। बट आपने वो टेक्निकल टर्म सीखी हुई है, इसलिए आपको पता है। वैसे कॉमर्स की टेक्निकल टर्म वो हम लोग अकाउंटेंसी में सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? एक कस्टमर जो उधारी पे गुड्स ले जाता है उसे हम डेटर कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर? हम जिससे गुड्स खरीदते उधारी पे, पैसा फ्यूचर में देंगे, तो वो सप्लायर को हम अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिटर। जो पैसा हमारा डूब जाता है हम उसे अकाउंट्स में बोलते हैं बैड डेट। तो ये डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ओके। तो पहले वो अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, तो आगे आपको सम्स में ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जब यूज्ड होगी तो एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट उसे आसानी से समझ सकता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ेंगे कॉमर्स में 11th स्टैंडर्ड में। हाउ टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है। What are the different methods which are used in India? Now all the economies of the world are one and the same. अभी कोई भी एक इकोनॉमी एक दूसरे से अलग नहीं हो गई। Okay, globally now everyone is connected to each other. Okay, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है, okay, globalization के बारे में, कि now every world is like a global village. तो economy is also very much related. तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई सिस्टम चल रहा है और फॉरेन कंट्री में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, 19-20 का फर्क रहेगा एज पर द ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स विच वी फॉलो हियर, तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस होगा, बट मोर और लेस इट्स द सेम। तो जनरली हम यहाँ पर क्या कैसे कौन सी टेक्निक यूज करते, एक सिस्टम है जो हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम विच वी हैव अडॉप्टेड इन इंडिया टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। Today's world is a computerized world. आज हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई। सो वो कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में हमें बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पहले हम नॉर्मल वे में सीखेंगे। इसी को आप कंप्यूटराइज में टैली करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप सीख सकते हो। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो टैली सीखने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं जाएगा। तो एवरीथिंग नाउ हैज़ बीन कंप्यूटराइज। तो हाउ दिस अकाउंट इज यूज्ड इन द कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, तो दैट विल यू बी लर्निंग इन दिस, ओके। करियर्स इन कॉमर्स, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, द डिफरेंट करियर्स ऑफ कॉमर्स यू कैन व्यू इट, ओके। और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में द टाइम विल बी शॉर्ट एंड देयर आर सो मेनी करियर्स इन कॉमर्स। लास्ट पॉइंट जो मेरी रह गई है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। जनरली हम अकाउंट्स में सीखते ही क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला हम कैसे वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दे, तो हम यहाँ पर बेसिकली ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के, जिसमें पैसा इन्वॉल्व, ओके। वो पैसा चाहे आपको आज मिले या फ्यूचर में मिलने वाला है, बट इफ द मनी इज इन्वॉल्व दैट इज व्हाट वी कॉल एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो जो सबसे पहले वो बुक में लिखते हैं वो बुक को हम यहाँ पर कहते हैं जर्नल। जर्नल इज लाइक अ गेटवे ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर होना है तो यही एक जरिया है जिसके थ्रू वो आ सकता है, दैट इज जर्नल। जर्नल से आगे बनता है लेजर। Ledger is a second phase of accounting process which helps to know the values, the balances of each account. के टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, कितनी इनकम हुई है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, हर एक चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है थ्रू अ लेजर, जो मच डिटेल में हम सीखेंगे हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। लेजर से बनता है एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड विच इज नथिंग बट इट्स अ प्लेटफॉर्म for the next stage, that is final accounts. Final accounts, नाम ही बोलते हैं final accounts, the accounts which are prepared finally. साल के आखिर में जो अकाउंटिंग करती है बिजनेस, ओके, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसे जानना है उसे प्रॉफिट हो रहा है या उसे लॉस हो रहा है बिजनेस में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो सब उसे जानना है, तो उसके लिए यहाँ पर बनता है फाइनल अकाउंट्स। तो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है जो हम लोग
11th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में सीखेंगे, जो हम एक बार वो कोर्स ऑप्ट करते हैं, देन विल बी टीचिंग यू मच इन डिटेल. सो ये छोटी सी एक कोशिश है हमारी तरफ से. ओके, सो क्लियर आउट योर डाउट्स एंड क्वेरीज. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि राइट दिस मोमेंट यू हैव टू फाइनलाइज योर करियर डिसीजन. एंड ऑलवेज it's my suggestion, take education as an investment. It's a long term investment which will help you to build a strong future ahead. Don't consider it as an expense. कभी भी उसे expense ना समझो. Education only will help you to become independent in future, a successful future. Okay, that is given through education only. So it's very important that we should educate ourselves. This is the right time and right age for you to finalize everything. If you have any queries, you can call us on the numbers, okay, which we are giving you. So call us on that numbers, and on one-to-one we can clear your doubts and queries. So that's all from my side, students. Take care. Okay, goodbye, students.